Namaskar to all of you. Again, myself Asit Kumar Patnaik. I am coming back to my channel Asit Sarikomania. Today, I will discuss balance of payments, part 3. In this part, I will discuss capital account of BOP. In this part, I will discuss all the important informations related to the international trade. So this account is very important one. So my friends, please comment me, subscribe me, and like my video and watch video till the end. Definitely, my explanation would be interesting one, and definitely you will get some interesting facts. So I do not want to waste more time. Now I am going to discuss capital account of BOP. Definition of capital account. In this account, it records all such transactions between the residents of the country and the rest of the world which cause a change in the asset or liability status of the residents of a country or its government. ये अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शंस होगा रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, उसमें असेट्स और लाइबिलिटीज में चेंज होगा. कोई प्राइवेट ट्रांजैक्शंस है, जैसे एनी ट्रांजैक्शंस मेड बाय द प्राइवेट सेक्टर, सो इससे चेंज इन असेट्स और लाइबिलिटीज ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री. और कोई ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस हो रहा है, इट मीन्स any transactions made by the government, due to this there is change in assets or liabilities of the government. So हम कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी का कंपोनेंट्स को डिस्कस करने से पहले लाइबिलिटी और असेट के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ. लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, हियर लाइबिलिटी इट इज फॉरेन एक्सचेंज लाइबिलिटी, because here economic transactions are taking place between residents of the country and the rest of the world. So liability of the government, foreign exchange liability of the government, it means it is financial burden, it is financial strain of the government. It means government must be obliged and government would be committed to pay back it in future in the form of foreign exchange. क्लियर. सो लाइबिलिटी एक बर्डन है, उसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. जैसे गवर्नमेंट बोरो कर रहा है, तो जितना फंड्स बोरो कर रहा है उसको फ्यूचर में जो मैच्योरिटी डेट होता है उसमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट. सो सिमिलरली लाइबिलिटी ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, रिलेटेड टू द लाइबिलिटी ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, the residents of the country would be obliged and must be committed to pay back in future in interest in the form of foreign exchange if the residents of the country borrow funds. Or simply in case of liability, it means the government and residents of the country must be obliged to pay back in future. So basically liability, it is a financial burden, it is a financial strain. Then हम assets के बारे में डिस्कस करेंगे. It means income generated from the properties, income earned from the properties. So in this case, basically related to the international trade, creation of foreign exchange assets. So creation of foreign exchange assets, it means assets are convertible to foreign exchange, and from these assets we earn foreign exchange. From these assets we earn income. From these assets we earn income in the form of foreign exchange. Clear? सो ये अकाउंट में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होगा उसमें एसेट और लाइबिलिटी में चेंज होगा. यदि गवर्नमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी और एसेट में चेंज होगा. यदि रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कर रहा है तो
there is change in asset or liability of the residents of the country. Now I will discuss different components. It is borrowing and lending. फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट बोरोइंग के ऊपर डिस्कस करना चाहता हूं. गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज बोरो फंड्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो मैं बोल चुका हूं जो भी हम रिसिप्ट करेंगे वो क्रेडिट साइड में एंट्री होगा, जो भी हम पेमेंट करेंगे वो डेबिट साइड में एंट्री होगा. तो जो भी पेमेंट रिसिप्ट होगा वो फॉरेन एक्सचेंज में होगा. सो गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज बोरो फंड्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इट क्रिएट्स द फॉरेन एक्सचेंज लाइबिलिटीज. सो बोरोइंग is the part of which account in BOP? Borrowing is the part of the capital account. रीजन क्या है इसमें, क्या लाइबिलिटी और असेट किस में चेंज हो रहा है? इट क्रिएट्स द फॉरेन एक्सचेंज लाइबिलिटीज. क्योंकि गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज इंडियन कॉर्पोरेट्स, इंडियन फर्म्स, इंडियन कंपनीज, नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज. So when government and non-government entities borrow from the rest of the world, it creates the foreign exchange liabilities because they must be committed to pay back in future with interest in the form of foreign exchange. इसको देना पड़ेगा जो भी अमाउंट बोरो करेंगे. अच्छा, अभी हम बोरो करेंगे, so it is inflow of foreign exchange, so it is recorded on credit side. So दो चीज हमको याद रखना है. बोरोइंग किस अकाउंट में इंक्लूड होगा, इन व्हिच अकाउंट बोरोइंग इज रिकॉर्डेड एंड ऑन व्हिच साइड इट इज रिकॉर्डेड. ये कैपिटल अकाउंट में बोरोइंग इज द पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट. आपको देखना है वहां पर कि असेट और लाइबिलिटी इसमें क्या चेंज हो रहा है और कौन सा साइड में रिकॉर्डेड होगा. रिसीव कर रहे हैं ना पेमेंट कर रहे हैं, उसको देखेंगे. क्लियर? सो दो प्रकार का ट्रांजैक्शंस में बोला, प्राइवेट ट्रांजैक्शंस एंड गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस. रिलेटेड टू द प्राइवेट ट्रांजैक्शंस, इट इज द ट्रांजैक्शंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. व्हेन इंडियन कॉर्पोरेट्स, इंडियन नेशनल, इंडियन कंपनीज, इंडियन फर्म्स borrow from abroad and lending to abroad, it's private transactions. Another one, official transactions. When government borrow from rest of the world, government lending to rest of the world, it is official transactions. So what are the sources? Government raise funds through borrowing. From which sources government raise funds? So government borrow funds from foreign governments and from foreign financial institutions. It is International Monetary Fund, World Bank, it is International Bank for Reconstruction and Development, IBRD, Asian Development Bank, ADB, International Development Association, IDA, International Finance Corporation, etc. So government borrow funds from foreign governments and from foreign financial institutions. So it creates foreign exchange liability of the government, क्योंकि इसको गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा. It creates the foreign exchange liability of the government. Similarly, non-government entities, Indian corporates, basically Indian MNCs, related to the pharmaceutical, it is Ranbaxy, related to the color, it is Asian Paints, fastener, nuts and bolt, Sundaram Fasteners, Hero Motors, Infosys, Wipro, Tata Consultant Service. Okay, so these are the government MNCs. Government MNCs operate production across the world. So when non-government entities, basically private sector, Indian corporates, borrow from foreign commercial banks. Indian MNCs, they are branches operating in across the world. They are branches operating in different parts of the world. They borrow from foreign commercial banks.
Another one, external commercial borrowings, ECBs. एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के बारे में थोड़ा बता रहा हूं. इन इंडिया बेसिकली नॉन रेसिडेंट लेंडर्स lending to the Indian borrowers in India. It is one type of external commercial borrowing. Again, non-resident lenders lending to the Indian borrowers in India. So ECBs are loans in India, within bracket I have written in India, made by non-resident lenders in foreign currency to Indian borrowers. Borrowers can raise ECB, external commercial borrowing, from international banks, international capital market, international stock market, multilateral financial institutions like Asian Development Bank, International Finance Corporation, export credit agencies, etc. So from these sources, non-government entities, Indian corporates, Indian firms borrow funds to meet their finance. So borrowing means it creates foreign exchange liabilities, because government and non-government entities would be committed, must be obliged to pay back in future in the form of foreign exchange. Two types of borrowings, it is commercial borrowings and external assistance. What is the difference? In case of commercial borrowings, Indian government and private corporate sector borrow funds from the world money market at market rate of interest. Clear? Borrow from abroad at market rate of interest. It is commercial borrowing. External assistance, it means borrowing from rest of the world or borrowing from abroad at concessional rate of interest. In case of external assistance, rate of interest is less than the commercial borrowings. You know that India government getting external assistance from foreign governments. It means India government borrow funds from the foreign governments at concessional rate of interest. In case of external assistance, rate of interest is less than the market rate of interest. You remember. क्लियर? देन इन दिस केस हम बोरो करेंगे मीन्स उसको रीपेमेंट करना पड़ेगा. सो रीपेमेंट ऑफ लोन्स बाय द गवर्नमेंट एंड इंडियन कॉर्पोरेट्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लीड्स टू रिडक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लाइबिलिटीज. जब रीपेमेंट कर दिया जाएगा लोन को, उस समय फॉरेन एक्सचेंज लाइबिलिटीज कम हो जाएगा. बोरोइंग इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लाइबिलिटीज. Repayment of loans, it leads to reduction of foreign exchange liabilities. Repayment of loans also part of the capital account. Okay, इसमें क्या है ना, फॉरेन एक्सचेंज लाइबिलिटीज कम हो रहा है. हम रीपेमेंट कर रहे हैं मीन्स देयर इज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. यहां से फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है एंड इट इज एंट्री इन डेबिट साइड बिकॉज देयर इज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. हमको पेमेंट करना पड़ेगा. देन हम लेंडिंग के ऊपर जाएंगे. वेरी कॉमन चीज है, लेंडिंग मीन्स क्रिएशन ऑफ एसेट्स. जब हम लेंडिंग करेंगे, लेंडिंग टू अब्रोड अगेंस्ट फॉरेन सिक्योरिटीज, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज, वो जब लेंडिंग करेंगे, व्हेन दे लेंडिंग टू अब्रोड और लेंडिंग टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और लेंडिंग टू फॉरेन गवर्नमेंट्स, फॉरेन फार्म्स, so they lend against foreign securities. So lending to abroad by Indian government and non-government entities leads to creation of foreign exchange assets. India government lending to foreign governments against foreign securities. Non-government entities like Indian national, Indian corporates lending to foreign firms against foreign securities. So it leads to creation of foreign exchange assets. Foreign securities easily convert to foreign exchange. This foreign exchange assets. Okay. Foreign exchange assets means the foreign securities easily convertible to foreign exchange.
So lending to abroad against foreign securities leads to creation of foreign exchange assets. अच्छा, हम lend कर रहे हैं means there is outflow of foreign exchange. Clear? And it is recorded on debit side because there is outflow of foreign exchange. Government lending to foreign governments, Nepal, Bhutan, Maldives against foreign securities leads to creation of foreign exchange assets of the government. And similarly, private sector, to whom private sector lends funds, private sector basically Indian firms, branches of Indian private banks operating in overseas, lending to abroad to foreign firms leads to creation of foreign exchange assets of the residents of the country. प्राइवेट सेक्टर में जो इंडियन फर्म्स की ब्रांचेस ऑफ इंडियन प्राइवेट बैंक्स ऑपरेटिंग इन ओवरसीज लेंडिंग टू फॉरेन फर्म्स लीड्स टू क्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज assets of the residents of the country, and it is recorded on debit side because there is outflow of foreign exchange. Suppose for example, Reliance company lending $50,000 to a USA company against securities. So USA company submit securities and borrow from Reliance company. So for Reliance company there is creation of foreign exchange assets. Reliance company lending to USA firm against foreign securities, and for the Reliance company foreign securities easily convertible to foreign exchange. Clear? So first component is borrowing and lending. रिकवरीज ऑफ लोन्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम लेंड किया मीन्स उसको रिकवरी करेंगे. जब हम रिकवरी करेंगे तब उनका सिक्योरिटीज को हम रिटर्न कर देंगे. जो सिक्योरिटीज, जो फॉरेन सिक्योरिटीज वो सबमिट किए थे जब वो लोन लिए थे, उनका लोन को जब रिकवरी कर दिया जाएगा उनसे, तो ऑटोमेटिकली उनका सिक्योरिटीज को रिटर्न कर दिया जाएगा. So recovery of loans from rest of the world leads to reduction in foreign exchange assets. Lending to abroad, it is creation of foreign exchange assets. Recovery of loans from rest of the world leads to reduction in foreign exchange assets. Recovery of loans, it is recorded on credit side because there is inflow of foreign exchange. Government and non-government entities receive the loan amount in the form of foreign exchange. So it is recorded on credit side because there is inflow of foreign exchange. Clear? So lending, यहां पर आपको रिमेंबर करना है, lending creation of foreign exchange assets, recovery of loans reduction in foreign exchange assets. और हमको देखना है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. जो हम रिसीव कर रहे हैं वो क्रेडिट साइड, देयर इज इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. डेबिट साइड वो पेमेंट साइड है, देयर इज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. तो स्टार मार्क में दे दिया, मैं बता चुका हूं आपको प्राइवेट ट्रांजैक्शंस एंड ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस. बोरोइंग एंड लेंडिंग फ्रॉम ऑन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज और प्राइवेट सेक्टर आर प्राइवेट ट्रांजैक्शंस. बोरोइंग एंड लेंडिंग फ्रॉम on to rest of the world by government are official transactions with the rest of the world. Second component is foreign investment. जो foreign investment है वो two types, foreign direct investment and foreign portfolio investment. So FDI FPI में क्या डिफरेंस है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में उसका डेफिनेशन से पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं. इन केस ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, acquiring assets, purchasing assets, acquisition of assets, and fully control over it. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, अब्रोड में
जो भी असेट्स को खरीदा जाएगा, जो असेट्स को एक्वायर किया जाएगा, और इसके ऊपर बायर्स का व इन्वेस्टर्स का पूरा कंट्रोल रहेगा। बायर्स और इन्वेस्टर्स का पूरा कंट्रोल रहेगा मीन्स द बायर्स एंड इन्वेस्टर्स मस्ट हैव ओनरशिप राइट्स ओवर द असेट्स। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो इट रिफर्स टू परचेज एन असेट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हिच अलाउज फुल्ली कंट्रोल ओवर दैट असेट। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में असेट को परचेज किया जाएगा, असेट्स को एक्वायर किया जाएगा और उसके ऊपर फुल कंट्रोल रहेगा और उसके ऊपर ओनरशिप राइट रहेगा। वही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो कॉमन डेफिनेशन एफडीआई, इट रिफर्स टू परचेज ऑफ एन असेट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हिच अलाउज फुल्ली कंट्रोल ओवर दैट असेट। Indian investors investing funds on purchasing assets like land, building, purchasing a farm in rest of the world, it leads to creation of foreign exchange assets. Indian investors investing in abroad, Indian investors purchasing land, purchasing building, purchasing foreign farms for production purposes, it leads to creation of foreign exchange assets because these assets easily convertible to foreign exchange, creation of foreign exchange assets, और उसी assets से इनकम और होगा। From these assets Indian investors getting profit and the profit is coming back to our country in the form of foreign exchange. So rest of the world में assets acquire करना, assets purchase करना और उसके ऊपर ओनरशिप राइट को जाहिर करना, ऐसा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है एंड इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स एंड चेंज इन डोमेस्टिक ओनरशिप ऑफ फॉरेन एसेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनरशिप को देखना है। चेंज इन डोमेस्टिक ओनरशिप ऑफ फॉरेन एसेट्स, तो फॉरेन एसेट्स के ऊपर डोमेस्टिक रेसिडेंट्स का ओनरशिप रहेगा। चेंज इन डोमेस्टिक ओनरशिप ऑफ फॉरेन एसेट्स। ओके अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सपोज फॉर एग्जांपल टिस्को कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी परचेज ए फॉरेन फार्म by paying $1,000 million, $1,000 million देके टिस्को कंपनी एक यूएसए कंपनी को खरीदा। इट मीन्स टिस्को कंपनी हैज फुल्ली कंट्रोल ओवर द फॉरेन फार्म and Tisco company has ownership right over it. Clear? और $1,000 million पेमेंट किया जा रहा है मीन्स देयर इज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो वो डेबिट साइड में एंट्री होगा। सो इंडियन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग इन अब्रॉड, इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड बिकॉज देयर इज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एंड इंडियन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग इन अब्रॉड, इट इज द पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट बिकॉज इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स एंड चेंज इन डोमेस्टिक ओनरशिप ऑफ फॉरेन एसेट्स। यहां पर एक एग्जांपल में दे दिया, इंडियन कॉर्पोरेट एंटिटी एक्वायर्स ए लार्ज यूरोपियन स्टील प्लांट इन ए डील इन्वॉल्विंग पेमेंट ऑफ बिलियंस ऑफ यूरोज। एक इंडियन कॉर्पोरेट एक यूरोपियन स्टील प्लांट को खरीदने के लिए डील किया इन्वॉल्विंग पेमेंट ऑफ बिलियंस ऑफ यूरोज। Due to this deal, Indian entity acquiring ownership right of a foreign asset, तो यूरोपियन स्टील प्लांट के ऊपर ओनरशिप राइट रहेगा वो इंडियन कॉर्पोरेट का, वो इंडियन एंटिटी का, क्योंकि वो बिलियंस ऑफ यूरोज उसके ऊपर इन्वेस्ट किया और उसके ऊपर उसका ओनरशिप राइट रहेगा, तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया। क्लियर? यहां पर क्या हुआ ना, चेंज इन डोमेस्टिक ओनरशिप of change in domestic ownership over foreign asset। ओके, फॉरेन एसेट के ऊपर
डोमेस्टिक ओनरशिप हुआ, क्लियर, एंड इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड क्योंकि पेमेंट हुआ, बिलियंस ऑफ यूरोज पेमेंट हुआ, देयर इज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, देयर इज आउटफ्लो ऑफ यूरोज, सो इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड बिकॉज देयर इज इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्लियर। सो आपको याद रखना है जब हमारा इन्वेस्टर्स कोई एसेट्स एक्वायर करेंगे और वो एसेट्स के ऊपर उनका ओनरशिप राइट रहेगा, वो एसेट्स के ऊपर उनका फुल्ली कंट्रोल रहेगा, उसमें क्या होगा ना, इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स एंड चेंज इन डोमेस्टिक ओनरशिप ओवर फॉरेन एसेट्स, फॉरेन एसेट्स के ऊपर डोमेस्टिक ओनरशिप रहेगा, तो ये रीजन होगा। और किस साइड में, तो हम खरीद रहे हैं मीन्स हम देयर इज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सो इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। सिमिलरली जस्ट ऑपोजिट में जाएंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग फंड्स इन इंडिया, फॉरेन इन्वेस्टर्स एक्वायरिंग assets in India, purchasing assets in India, it leads to change in the foreign ownership of domestic assets, हमारा assets के ऊपर उनका ओनरशिप रहेगा, जो असेट और लाइबिलिटीज में चेंज आ रहा है यहां पर देखिए, जब फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे हमारी असेट्स को एक्वायर करेंगे, हमारा लैंड को खरीदेंगे, हमारा बिल्डिंग को खरीदेंगे, हमारा फार्म को खरीदेंगे प्रोडक्शन पर्पज के लिए, इट मीन्स इट इज चेंज इन द फॉरेन ओनरशिप ओवर डोमेस्टिक एसेट्स, तो डोमेस्टिक एसेट्स के ऊपर फॉरेन ओनरशिप हुआ, एंड क्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लाइबिलिटीज, फॉरेन एक्सचेंज लाइबिलिटीज क्योंकि उनको जो प्रॉफिट मिलेगा उनका कंट्री को जाएगा, हाउ मच प्रॉफिट दे विल रिसीव इन फ्यूचर, it would be going to their countries in the form of foreign exchange, so इससे क्या होगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कमी आएगा, क्लियर। सो व्हेन फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग इन इंडिया, acquiring assets and having ownership right over our assets, and it leads to change in the foreign ownership of domestic assets and creation of foreign exchange liabilities, clear, ये रीजन है। जब क्वेश्चन आता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग इन इंडिया, कौन सा अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ड्यू टू दिस देयर इज चेंज इन ओनरशिप ऑफ डोमेस्टिक एसेट्स एंड ऑल्सो क्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लाइबिलिटीज, इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड बिकॉज देयर इज इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। एक एग्जांपल दे दिया, एक फॉरेन एंटिटी एक्वायर्स ए होटल चेन इन इंडिया, होटल चेन मींस द होटल हैज ब्रांचेस इन डिफरेंट सिटीज, तो एक फॉरेन एंटिटी एक इंडियन होटल को बिलियंस ऑफ डॉलर्स में खरीदा और उसके ऊपर उसका फुली कंट्रोल रहा, द फॉरेन एंटिटी has ownership right over the hotel, clear। So in this case it leads to change in the foreign ownership of domestic asset, तो domestic asset के ऊपर foreign ownership हुआ and it is recorded on credit side, क्योंकि जब foreign entity ने हमारा कंट्री की होटल के ऊपर जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किया, so there is inflow of foreign exchange, there is inflow of foreign exchange, it is recorded on credit side, clear। ये फर्स्ट टाइप है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सेकेंड वन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट व फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या है, इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड investing funds on the assets but there is no control over it, the buyers having no ownership right over it। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अब्रोड में assets को एक्वायर किया जाएगा मगर उसके ऊपर फुली कंट्रोल नहीं रहेगा, पार्शियल कंट्रोल रहेगा और उसके ऊपर ओनरशिप राइट नहीं रहेगा। इसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इट मींस किसके ऊपर यहां पर इन्वेस्ट होगा, शेयर्स, बॉन्ड्स एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर इन्वेस्ट होगा।
जिसके ऊपर फुल्ली कंट्रोल नहीं रहेगा, पार्शियल कंट्रोल रहेगा, और जिसके ऊपर ओनरशिप राइट नहीं रहेगा। इट मीन्स परचेज ऑफ एन एसेट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट डज नॉट गिव कंट्रोल ओवर एसेट। तो ये डिफरेंस है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जब एसेट्स एक्वायर किया जाएगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, उसके ऊपर फुल कंट्रोल रहेगा और ओनरशिप राइट रहेगा। मगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में यहां पर जो इन्वेस्टमेंट होगा उसमें बायर्स का, बाय इन्वेस्टर्स का पूरा कंट्रोल नहीं रहेगा, पार्शियल कंट्रोल रहेगा, और उसका ओनरशिप राइट नहीं रहेगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में एक्वायरिंग एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग एंड परचेजिंग फॉरेन फार्म्स, बट यहां पर इन्वेस्टिंग फंड्स ऑन द शेयर्स, बॉन्ड्स एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स। So foreign portfolio investment consists of securities and other financial assets, bonds, shares passively held by the foreign investors। जैसे हमारा नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज फॉरेन फर्म्स का शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, वो फॉरेन शेयर्स के ऊपर उनका फुली कंट्रोल नहीं रहेगा, कि ओनरशिप राइट नहीं रहेगा। उनको डिविडेंड मिलेगा, उनको एक पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, एक पार्ट मिलेगा, क्योंकि वो फॉरेन फार्म्स व फॉरेन कंपनीज का शेयर के ऊपर इन्वेस्ट किया है। इट मीन्स फॉरेन कंपनी और फॉरेन फार्म्स के ऊपर उनका कोई राइट नहीं रहेगा, कोई ओनरशिप नहीं रहेगा। पैसा इन्वेस्ट किया है मीन्स उनको डिविडेंड प्राप्त होगा। वैसे बॉन्ड के ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो उनको इंटरेस्ट प्राप्त होगा। क्लियर? So FPI consists of securities and other financial assets, bonds, shares passively held by foreign investors. It does not provide the investor with direct ownership of financial assets। मैं बोल चुका हूँ, उसके ऊपर ओनरशिप राइट्स नहीं रहेगा। And is relatively liquid। Liquid means easily convert to cash, depending on the volatility of the market। स्टॉक मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। शेयर्स, बॉन्ड्स, प्राइसेस ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स मेनली डिपेंड अपॉन द इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट सिचुएशन। इट इज वोलेटिलिटी, इट मीन्स वो प्राइसेस अप एंड डाउन, सभी एवरी डे द प्राइसेस आर चेंजेस, प्राइसेस ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स चेंजेस। तो उसका प्राइसेस के ऊपर डिपेंड करेगा उसका लिक्विडिटी इजीली कन्वर्ट टू, सपोज यहां पर इजीली कन्वर्ट टू फॉरेन एक्सचेंज। तो यहां पर हम देखेंगे व्हेन डोमेस्टिक रेसिडेंट्स, इंडियन नेशनल, इंडियन फार्म्स एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ गवर्नमेंट, ओएनजीसी, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो अंडरटेकिंग्स को गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। इन्वेस्ट फंड्स ऑन द शेयर्स, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज ऑफ फॉरेन फार्म्स एंड फॉरेन गवर्नमेंट। जब हमारा डोमेस्टिक रेसिडेंट्स की आवर पीएसयूज ऑफ गवर्नमेंट वो फॉरेन फार्म्स की शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, कि फॉरेन गवर्नमेंट की बॉन्ड्स के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, then it leads to creation of foreign exchange assets। It leads to creation of foreign exchange assets। और हम इन्वेस्ट करेंगे मीन्स there is outflow of foreign exchange and it is recorded on debit side because there is outflow of foreign exchange। जब फॉरेन फार्म्स का शेयर के ऊपर इन्वेस्ट किया जाएगा तब डिविडेंड प्राप्त होगा। जब गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तब इंटरेस्ट प्राप्त होगा। शेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो डिविडेंड प्राप्त होगा, क्योंकि डिविडेंड का डेफिनेशन क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट पेड टू द शेयर होल्डर्स। जो फॉरेन गवर्नमेंट्स कुछ बॉन्ड्स को बेचता है, जब हमारा डोमेस्टिक रेसिडेंट्स वो बॉन्ड्स को खरीदेंगे तो उनके ऊपर उनको इंटरेस्ट प्राप्त होगा। और यहां पर जो शेयर्स, बॉन्ड्स को खरीदा जाएगा और एनी अदर फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदा जाएगा, उसके ऊपर ओनरशिप राइट नहीं रहेगा, उसके ऊपर फुली कंट्रोल नहीं रहेगा, पार्शियल कंट्रोल है, फुली कंट्रोल नहीं रहेगा। ओके, हम फॉरेन कंपनीज का शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, मगर फॉरेन कंपनीज के ऊपर हमारा कोई ओनरशिप राइट नहीं रहेगा। क्लियर? ओनली हमको डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव करना है। इट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जैसे कि उदाहरण देता हूं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। नाउ our India government has allowed the foreign institutions to invest in our pension funds। It means government has allowed
it means 49% of investment made by the foreign institutions on our pension funds. Pension fund, it is regulated by the Pension Fund Regulatory Development Authority. Pension Fund Regulatory and Development Authority, PFRDA. क्लियर? तो अभी गवर्नमेंट अलाउ किया है, कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन वो फॉरेन फंड के ऊपर मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकता है? 49%. इंश्योरेंस सेक्टर में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में इक्विटी शेयर के ऊपर कोई इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस. क्लियर? So similarly, when foreign firms and foreign national invest funds on the shares, bonds and other securities of Indian firms and government, जब फॉरेन फार्म्स हमारा फार्म्स का शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, हमारी गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, देन इट लीड्स टू फॉरेन एक्सचेंज लाइबिलिटीज. वो इन्वेस्ट करेंगे मीन्स हमको क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड का इंटरेस्ट उनको देना पड़ेगा, तो इट इज फॉरेन एक्सचेंज लाइबिलिटीज. उनको डिविडेंड इंटरेस्ट कैसे देना पड़ेगा? इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एंड इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, क्योंकि वो हमारी शेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं मीन्स देयर इज इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड. क्लियर? देन नेक्स्ट वन, NRI deposits. Third one, NRI deposits. Non-resident Indians. Who are the non-resident Indians? People are the citizen of the country, but they are residing in the foreign countries for more than 1 year, and their economic interest lies in the foreign countries, not in India. उनको हम non-resident Indian बोलेंगे. वो फंड ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू इंडिया. They want to maintain account in India. Non-resident Indians want to maintain account in India. It refers to transfer of funds by the non-resident Indians from the rest of the world. So NRI deposits creates foreign exchange liabilities. क्योंकि NRI जो डिपॉजिट करेंगे वो भी फ्यूचर में विथड्रॉ करेंगे, तो विथड्रॉ करेंगे मीन्स उनको कैसे पेमेंट किया जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. सो NRI deposits creates foreign exchange liabilities. And NRI deposits, it is recorded on credit side because there is inflow of foreign exchange. Similarly, NRI withdrawals, it is reduction of foreign exchange liabilities. And it is recorded on debit side because there is outflow of foreign exchange. Okay, it is the third component. Next one, banking capital. ये बहुत important है. It comprises of 3 components. One is foreign assets of commercial banks. फॉरेन असेट्स, इट इज फॉरेन करेंसी होल्डिंग्स. हमारा कमर्शियल बैंक्स में फॉरेन करेंसीज है. क्लियर? इट इज फॉरेन असेट ऑफ द कमर्शियल बैंक. रुपी ओवरड्राफ्ट टू नॉन रेसिडेंट बैंक्स, इसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूं. जैसे नॉन रेसिडेंट बैंक का डिपॉजिट है, फॉर एग्जांपल वन नॉन रेसिडेंट बैंक and this bank has deposit in State Bank of India. Clear? Suppose this NRI bank has already in NRI bank account 5 lakh is there. NRI बैंक का डिपॉजिट SBI में है और 5 लाख है. सपोज उसको कि इंडियन रुपी में 8 लाख चाहिए, ज्यादा 3 लाख चाहिए, तो वो 3 लाख बोरो कर सकता है SBI में, उसको ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, क्योंकि अकाउंट में 5 लाख है, वो 8 लाख बोरो करना चाहता है, तो SBI उसको 3 लाख लोन देगा और अगेंस्ट फॉरेन सिक्योरिटीज, तो वो फॉरेन सिक्योरिटीज हो गया SBI के लिए फॉरेन एसेट्स. सो ओवरड्राफ्ट्स इज द अमाउंट ऑफ लोन sanctioned and it is over and above the deposited amount in the account of the NRI. जैसे उसका अकाउंट में 5 लाख है मगर उसको 8 लाख चाहिए, so the amount of loan sanctioned over and above the amount of money deposited in the account of NRI. तो ये ओवरड्राफ्ट है. अकाउंट में 5 लाख है, उसको 8 लाख चाहिए इंडियन करेंसी में, तो उसको SBI क्या करेगा? 3 लाख
लोन क्या आकार में देगा? ऑलरेडी उसका 5 लाख है, उसका डिपॉजिट में, उसका अकाउंट में डिपॉजिट है, उसको 3 लाख लोन क्या आकार में देगा? अगेंस्ट फॉरेन सिक्योरिटीज। सो वो फॉरेन सिक्योरिटीज क्या हो गया एसबीआई के लिए? फॉरेन असेट। सो रुपी ओवरड्राफ्ट्स टू नॉन रेसिडेंट बैंक्स। देन फॉरेन लाइबिलिटीज ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट्स इट इज लाइबिलिटीज ऑफ कमर्शियल बैंक्स, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स को उसको देना पड़ेगा। देन सिमिलरली फॉरेन करेंसी लाइबिलिटीज, कभी कभी क्या है, हमारा कमर्शियल बैंक्स बोरो फ्रॉम नॉन रेसिडेंट बैंक्स एंड दोज इट मीन्स कमर्शियल बैंक्स देयर ब्रांचेस आर देयर इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो कमर्शियल बैंक्स हमारा है, जैसे एसबीआई, उसका ब्रांच अक्रॉस द वर्ल्ड है, वो अभी फॉरेन बैंक से बोरो किया तो डेफिनेटली लीड्स टू फॉरेन एक्सचेंज लाइबिलिटीज, फॉरेन करेंसी लाइबिलिटीज उसको देना पड़ेगा। तो वही फॉरेन करेंसी लाइबिलिटीज टू नॉन रेसिडेंट बैंक्स। जैसे विद इन कंट्री आवर कमर्शियल बैंक्स बोरो फ्रॉम एनआरआई बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इंडिया में हमारा कमर्शियल बैंक से एनआरआई बैंक से बोरो करेंगे फॉरेन एक्सचेंज के आकार में, और इन बेसिकली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और इन अब्रोड आवर कमर्शियल बैंक्स हैविंग ब्रांचेस दे बोरो फ्रॉम द फॉरेन बैंक्स, so definitely it leads to foreign exchange liabilities for them. Clear it is okay, foreign assets of commercial banks, foreign liabilities of commercial banks and others में क्या है, जैसे हमारा आरबीआई में डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स का डिपॉजिट है, डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ, आईबीआरडी, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, उनका डिपॉजिट है आरबीआई में। तो उनका डिपॉजिट आरबीआई में है मीन्स इट इज लाइबिलिटीज फॉर द आरबीआई, फॉरेन एक्सचेंज लाइबिलिटीज फॉर द आरबीआई। क्योंकि आरबीआई से क्या करेंगे, वो आरबीआई में डिपॉजिट है मीन्स वो विथड्रॉ करेंगे और आरबीआई उनको पेमेंट करेगा फॉरेन एक्सचेंज में। सो इट इज फॉरेन एक्सचेंज लाइबिलिटीज ऑफ द आरबीआई। और ये डिपॉजिट हो रहा है मीन्स ये कौन सा साइड में रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड में, बिकॉज देयर इज इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सिमिलरली डिपॉजिट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, डिपॉजिट्स ऑफ एसबीआई, balances of Indian embassies and diplomatic missions with the central bank of foreign countries। जैसे इंडियन गवर्नमेंट का डिपॉजिट है, एसबीआई का डिपॉजिट है, और इंडियन एम्बासीज ऑपरेटिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड उनका जो बैलेंस है, डिप्लोमेटिक मिशंस उनका जो बैलेंस है सेंट्रल बैंक ऑफ फॉरेन कंट्रीज, जो आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड बिकॉज देयर इज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर? So please my friends, watch my video till the end. Definitely you get so many informations, and please comment me and subscribe my channel Asit Sarikomania and like my video. So definitely in subsequent time I will bring some nice videos, and in my next video in the balance of payment part I will bring official reserve transactions. It is official settlement account. It is also part of the capital account, but separately I will discuss official reserve transactions or official settlement account. So today इतना ही है. Thank you.